Hello students, as we know chapter 7 which is HTML and introduction has started. In previous video we have discussed about HTML, hypertext markup language, tags and attributes of HTML and structure of HTML document. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is getting started with HTML. So how can we write HTML document? To write HTML document, we have to open text editor like Notepad, type the program and save the file with extension name .html or .html. इसमें HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस किसी भी टेक्स्ट एडिटर को आपको ओपन करना होगा. देन टाइप द होल कोडिंग, जितनी कोडिंग आपको टाइप करनी सारी कोडिंग आप टाइप करो एंड देन सेव द फाइल विद द नेम एक्सटेंशन नेम .html और .html. फिर आप अपने फाइल को सेव करो. असाइन द नेम ऑफ द फाइल, जो भी आपको नेम प्रोवाइड करनी है अपनी फाइल के लिए, असाइन द नेम ऑफ द फाइल विद एक्सटेंशन नेम .html. अपने फाइल नेम के साथ आपको .html एक्सटेंशन या फिर .html एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है, असाइन करना है. एवरी HTML डॉक्यूमेंट विल बी सेव विद एक्सटेंशन .html और .htm. तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपके सेव होते हैं एक्सटेंशन नेम .html या फिर .htm के साथ. To create a web page using a text editor, we have to follow some steps. Here you can see steps to create a web page with the help of text editor. First of all, you have to click on Start button, then Windows accessory, and then Notepad. इसमें you have to first of all you have to open text editor like Notepad. तो आपको पहले उसे ओपन करना होगा. तो टाइप ऑफ कंप्लीट कोडिंग आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है. तो टू ओपन ए नोटपैड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन Start button. Start menu appears, then click on all program option, again a sub menu appears and then click on accessories option. Here you can see this is accessories option, click on it and you can again sub menu appears and choose notepad button, notepad option to open a notepad window. So after opening the notepad window and after clicking the notepad option, notepad window appears on your desktop screen. Type the whole programming and then click on file menu and select save as option. After typing the whole coding you have to click on file menu, and when you click on file menu a drop down menu appears, then choose save as option from this menu, and when you click on save as option, save as dialog box appears. Enter the name of the file along with the extension .html or .html and click on the save button. जिसमें when save as dialog box आपके सामने appear होता है तो आपको फाइल नेम टाइप करनी है along with extension name .html और .html. एक्सटेंशन नेम के साथ आपको फाइल नेम असाइन करना है. एंड आफ्टर असाइनिंग द नेम ऑफ द फाइल, click on save button. Let me show you how can you save the HTML document. I am going to click on start button, start menu appears, click on all program option, then accessories. Here you can see this is accessories option, click on it and you can see here notepad option, click on it and notepad window appears. Here you can see this is notepad window. टाइप द कोडिंग, आप जो भी कोडिंग आप टाइप करना चाहते हो टाइप करो. वेब पेज के लिए जो भी कोडिंग चाहिए, HTML ओपनिंग HTML टैग, क्योंकि हम HTML पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो HTML टैग सबसे पहले HTML टैग हम प्रोवाइड करते हैं. देन हेड टैग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, हम हेड टैग यूज़ करते हैं. हेड टैग के अंदर टाइटल टैग टू प्रोवाइड असाइन द नेम ऑफ द टाइटल टैग यूज़ करते हैं वेब पेज के टाइटल के लिए. एंड टाइप द नेम ऑफ द वेब पेज, नेम ऑफ द टाइटल, आप टाइप करो वेब पेज का जो भी आप टाइटल देना चाहते हो टाइप करो एंड देन क्लोज द टाइटल टैग. आफ्टर दिस आपका हेडिंग सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया. देन क्लोज हेड टैग एंड कम टू द नेक्स्ट लाइन, बॉडी टैग स्टार्टेड, come to the next line and body tag close and then HTML tag close. इसमें आपका जो कोडिंग है, आपके HTML डॉक्यूमेंट की जो कोडिंग है यहाँ पे कंप्लीट होती है. क्लोजिंग HTML टैग शो करता है कि आपकी जो पूरी कोडिंग है HTML डॉक्यूमेंट की ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है. सो आफ्टर द कोडिंग यू हैव टू सेव दिस फाइल. सो टू सेव द फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल बटन, a drop down menu appears, click on save option from the drop down menu. A save as dialog box appears. Here you can see this is save as dialog box. Assign the name of the file with extension name .html. I am going to assign name web with extension name .html. After assigning the name of the file, click on save button and your file will be saved. Here you can see web.html आपका फाइल सेव हो चुका है. So now moving further, after saving the file, notice the icon of the file. It is an Internet Explorer file icon. Double click on it to open. It will be opened in Internet Explorer.
तो जब आप फाइल सेव करते हो तो आप क्या करते हो कि आपका जो फाइल है वो आइकन में, आप एक आइकन को नोटिस करते हो जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का फाइल आइकन होता है, विच मीन्स आपके वेब ब्राउज़र का फाइल आइकन होता है। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे अगर गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के फाइल आइकन में होगा। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो तो मोजिला फायरफॉक्स के फाइल आइकन में होगा। अगर आप ओपेरा या सफारी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो तो वो ओपेरा या सफारी वेब ब्राउज़र के फाइल आइकन में होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर वेब ब्राउज़र, आप कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो अपने डेस्कटॉप पे, वो उस वेब ब्राउज़र के फाइल आइकन में डिस्प्ले होगा। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन दैट वेब पेज, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, आपका फाइल उस वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। लेट मी शो यू। हियर यू कैन सी web.html आपका फाइल सेव हो चुका है, जो कि कौन से फाइल आइकन में, गूगल क्रोम फाइल आइकन में, बिकॉज मेरे डेस्कटॉप पे वेब ब्राउज़र जो यूज होता है वो गूगल क्रोम यूज होता है। तो ये आपका जो फाइल, जो HTML फाइल जो आप सेव किए, मैं सेव की, वो आपके गूगल क्रोम के फाइल आइकन में सेव हुआ है। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट and you can see the file will be open in Google Chrome window. Here you can see Google Chrome window में आपका फाइल ओपन हो गया है। Here you can see the title of the web page, my web page. Whatever title you provide on your coding for your web page, it will be displayed on the top of the title of your title bar. आपको जो भी आप टाइटल प्रोवाइड करते हो अपने वेब पेज के लिए, वो टाइटल बार जो होता है वहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है। लाइक हियर कैन सी माय वेब पेज, आपका टाइटल प्रोवाइड हो रहा है आपके वेब पेज के लिए। सो मूविंग फर्दर, now we have discussed about body tag. So now we have discussed about some basic tags of HTML, and first one is body tag. Body tag defines the document body. As we already know, the body tag defines the document body, which means आपके जो वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट का जो पूरा बॉडी होता है, या क्या कह सकते हैं जो मेन सेक्शन होता है, वो बॉडी टैग डिफाइन करता है। बॉडी टैग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जो भी आपकी कोडिंग होती है उसमें आपका HTML जो टैग का सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर टाइटल के सेक्शन भी आपका, टाइटल टैग का भी सेक्शन आपका छोटा होता है, बट बॉडी टैग का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी कोडिंग हम बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। Various markup elements are allowed within the body to indicate headings, paragraph, list, hypertext, link, etc. तो जितने भी मार्कअप एलिमेंट होते हैं, मार्कअप टैग्स होते हैं, वो सारे हम बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम उसमें आपके वेब पेज पे आप हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, हाइपरटेक्स्ट डिस्प्ले कर सको। इन बॉडी टैग वी कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल, लिस्ट, हाइपरलिंक एक्सेट्रा। अपने बॉडी टैग के अंदर हम सारे कुछ टेक्स्ट, इमेज, हाइपर टेक्स्ट, लिंक, सारा कुछ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग हम अपने वेब पेज पे सारा कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। सो एज यू नो, बॉडी टैग इज अ कंटेनर टैग, विच मीन्स इट हैज अ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। जैसा हम जानते हैं कि बॉडी टैग क्या है, कंटेनर टैग है, इसकी एक ओपनिंग टैग भी होती है एंड क्लोजिंग टैग है। कैसे, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ बॉडी टैग। Body tag open, then type the content of the in between body tag and then closing body tag. So here can see this is some coding of body tag. तो ये यही कोडिंग आपको मैं यूज करके दिखाती हूँ। here can see this is the body tag, opening body tag, enter key and then type the coding, type whatever text you want to display on your web page। अपने वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, वो आप टाइप करो एंड देन आफ्टर टाइपिंग द कोडिंग, save this coding and then go to your web page. Your web page has opened now. Click on reload button and what did you see? My first web page जो कंटेंट आप बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में आप टाइप किए, वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। सो नाउ मूविंग फर्दर, बॉडी टैग कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स which are used to enhance the layout of the web page। बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी मतलब वेब पेज के लेआउट को इन्हेंस करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। सो बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है बॉडी टैग के। सो एज यू नो, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर यूजिंग इन ओपनिंग टैग। आप एक बात हमेशा याद रखने की चीज़ है कि जितने भी एट्रीब्यूट हम किसी टैग की यूज करते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट हम ओपनिंग टैग के साथ यूज करते हैं, क्लोजिंग टैग के साथ नहीं यूज करते, ओपनिंग टैग के साथ यूज करते हैं। So now I'm going to discuss about first attribute of body tag, which is background attribute. Background attribute is used to apply a picture as a background on the web page, which means by using background attribute you can set a picture as a background of the web page। आप web page का किसी पिक्चर को आप as a background web page के background में
एज ए बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज आप सेट कर सकते हो किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को. Here you can say syntax of background attribute, opening body tag has started, then space, then background attribute is equal to sign, and then name of the image file with extension name. आपको सिर्फ इमेज फाइल का नाम नहीं प्रोवाइड करना, आपको एक्सटेंशन नेम के साथ प्रोवाइड करना है इमेज फाइल का नाम. Then close opening body tag, type the content whatever you want to type, and then closing body tag. Let me show you how can you apply a picture as a background of the web page. Here you can see this is a text editor. आपका notepad text editor है. I'm going to use background एट्रीब्यूट. तो जो भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो ओपनिंग टैग के साथ यूज होते हैं. तो दिस इज द ओपनिंग बॉडी टैग, आपका ओपनिंग बॉडी टैग है. तो यहाँ हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे. तो आफ्टर टाइपिंग द टैग नेम, आप टैग नेम प्रोवाइड करने के बाद गिव सम स्पेस देना है, एंड देन टाइप द एट्रीब्यूट नेम बैकग्राउंड. आफ्टर टाइपिंग द एट्रीब्यूट नेम is equal to sign, and then provide the name of the image file with extension in between double quote. आपको डबल कोट जो होता है उसके बीच में आपको इमेज फाइल को का नाम प्रोवाइड करना है विथ एक्सटेंशन. सो आई एम गोइंग टू टाइप अ इमेज फाइल नेम रेनबो विथ एक्सटेंशन JPG. ओके, डबल कोट प्रोवाइडेड आपका हो चुका है. देन अब आफ्टर कोडिंग, आपकी टाइपिंग कोडिंग के बाद आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू सेव द फाइल. आपको फाइल सेव करनी है, एंड देन गो टू योर वेब पेज एंड रीलोड दिस पेज. What did you see? A picture has set as a background of your web page. आपका एक पिक्चर, जो भी पिक्चर आप यूज किए वो आपके बैकग्राउंड में एज ए बैकग्राउंड आपके वेब पेज में सेट हो चुका है. सो मूविंग फर्दर, if the required image is saved at the same location where the web page is saved, then you don't need to give path of the image file in the tag. अगर आपका जो इमेज फाइल है और वेब पेज फाइल है जो आप क्रिएट करें वो एक सेम लोकेशन में है, तो आपको सिर्फ इमेज फाइल का सिर्फ नेम प्रोवाइड करने की जरूरत है, पूरे पाथ की जरूरत नहीं, पूरे पाथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है. जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया कि मैंने सिर्फ फाइल नेम यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो HTML डॉक्यूमेंट है वेब पेज का फाइल और ये पिक्चर इमेज फाइल दोनों सेम लोकेशन पे एक ही जगह पे, तो सिर्फ इमेज फाइल यूज का नेम यूज हुआ कुछ एक्सटेंशन ने, बाकी पाथ देने की जरूरत नहीं है. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, विच इज BG कलर. BG color attribute is used to change the background color of the web page. It means by using the BG color attribute, you can change the background color of the web page. आप web page का background color को आप change कर सकते हो with the help of BG color attribute. So you can see syntax. I'm going to use how can you use BG color attribute on your web page. So here you can see background attribute हम use किए थे. Now I'm going to use BG color. So after typing the tag name और opening tag, आपको tag name provide करने के बाद आपको then give some space and then type BG color attribute. After providing the name of attribute, space is equal to sign, and then provide the color name in between double text. Double quote के अंदर आपको color name provide करना है. Like if you want to set the blue color as your background of the web page, अगर आप blue color चाहते हो background web page का background में, तो just type blue. Okay, and then close the opening body tag. Then save this coding and go to your web page, reload this page, and what did you see? आपका जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड है ब्लू में कन्वर्ट चेंज हो चुका है, ब्लू में वो ब्लू सेट हो चुका है आपका बैकग्राउंड. इफ़ यू वांट टू चेंज डिफरेंट कलर यूज करना चाहते हो, यू कैन यूज डिफरेंट कलर. आप दूसरे कलर यूज कर सकते हो, लाइक सियान यूज करना चाहते हो सियान यूज करो. सेव दिस फाइल, सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज, reload this page, and you can see आपका जो उनका जो बैकग्राउंड वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो चुका है. सो नाउ मूविंग फर्दर, text is the next attribute of body tag. So what is the function of text editor? Text attribute. Text attribute is used to change the color of whole text of the web page, which means that you can change the color of whole text of the web page by using text attribute. टेक्स्ट एट्रीब्यूट के हेल्प से आप अपने वेब पेज में जितने भी टेक्स्ट लिखते हो, जितने भी कंटेंट आपके वेब पेज पर होते हैं, उन टेक्स्ट का आप कलर चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट. यू कैन स्पेसिफाई द कलर वैल्यू एज RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू पेयर्स इन हेक्साडेसिमल नोटेशन. आप यू कैन प्रोवाइड द कलर नेम एज वेल एज यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ हेक्साडेसिमल नोटेशन टू एज अ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट. टेक्स्ट एट्रीब्यूट में आपको क्या करना होता है, कलर नेम प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आप कलर चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट की, तो आपको कलर नेम प्रोवाइड करना होता है एज ए वैल्यू. तो वहाँ पे आप कलर नेम भी यूज़ कर सकते हो, लाइक रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर आप नेम यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो.
एज वेल एज आप यू कैन ऑल्सो यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन, मतलब जो आपके जो कलर नेम के जो वैल्यू होते हैं हेक्साडेसिमल में, आप उसको यूज कर सकते हैं टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। लेट मी शो यू हाउ कैन यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। हियर यू कैन सी बीजी कलर आपका सेट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट एट्रीब्यूट। आफ्टर गिविंग द स्पेस आई एम यूजिंग टेक्स्ट एट्रीब्यूट, then equal to sign and then provide the color name of color name. Okay, so I am going to use green. Okay, green color name. Save this coding, go to your web page. अभी आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर ब्लैक है। नाउ रिलोड दिस पेज एंड व्हाट डिड यू सी, आपका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो, जिस भी कलर में आप चाहते हो आप उस तरह से कलर को चेंज कर सकते हो। Here you can see I am going to use blue color, save this coding and reload this coding, and आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है। So now moving further, I am now going to explain about the next attribute, which is left margin attribute and top margin attribute. So what is margin? The blank space between edge of the web page and the text of the web page is called margin. आपके वेब पेज का जो एज होता है, उस एज और टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। So with the help of left margin and top margin, we can set the blank area on the left side of web page and on the top of the web page respectively. It means with the help of left margin attribute, here you can see this is the left margin attribute. With the help of left margin attribute, we can लीव ब्लैंक एरिया ऑन द लेफ्ट साइड। हम लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट की हेल्प से अपने वेब पेज के एज और टेक्स्ट के बीच में कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट। हियर कैन सी दिस इज द कोडिंग टेक्स्ट एडिटर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट। हियर कैन सी आई एम गोइंग टू टाइप लेफ्ट मार्जिन। After typing the left margin attribute is equal to sign and then provide the value। आप कितना स्पेस चाहते हो, तो स्पेस जो whatever the value of left margin आप डिफाइन इन पिक्सल, आपका जो भी वैल्यू होगा मार्जिन का वो आपका पिक्सल में यूज होगा। सो आई एम गोइंग टू टाइप 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आई एम गोइंग टू यूज 100 पिक्सल, देन सेव दिस कोडिंग एंड गो टू योर वेब पेज। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि अभी आपका जो वेब पेज का जो एज है, किनारा है और टेक्स्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं है। बट आफ्टर यूजिंग लेफ्ट मार्जिन व्हेन यू रिलोड दिस पेज, व्हाट डिड यू सी, आपके वेब पेज के लेफ्ट एज से और टेक्स्ट के एज में कुछ स्पेस गैप आ चुका है, कुछ स्पेस आ चुका है। तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट मार्जिन यू कैन सेट द लेफ्ट स्पेस बिटवीन लेफ्ट एज ऑफ द वेब पेज एंड टेक्स्ट बिटवीन टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज। आप टेक्स्ट और एज के वेब पेज के एज और टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस आप डिफाइन कर सकते हो। सो नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज टॉप मार्जिन। सो टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू लीव ब्लैंक एरिया फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द डॉक्यूमेंट, which means by using the top margin attribute you can leave blank area from the top of the edge। which means आपका जो वेब पेज होता है, आप टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट के हिसाब से आप अपने वेब पेज के टॉप पर आपको टॉप एज जो होता है वहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस, जस्ट लाइक लेफ्ट साइड में आप स्पेस छोड़े वैसे ही आप टॉप पर भी स्पेस छोड़ सकते हो। लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट। फिर कैसे दिस इज द टेक्स्ट एडिटर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज टॉप मार्जिन। आफ्टर गिविंग द स्पेस आई एम गोइंग टू टाइप टॉप मार्जिन, देन स्पेस इक्वल टू साइन एंड प्लेस द वैल्यू इन पिक्सल। आपको जो भी वैल्यू पिक्सल प्रोवाइड करनी है वो वैल्यू प्रोवाइड करो। आई एम गोइंग टू टाइप 150, ओके 150 पिक्सल, देन सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज। अभी आप क्या देख रहे हो कि आपका वेब पेज का जो टॉप एज है और कंटेंट के बीच में, टेक्स्ट के बीच में कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं है। बट आफ्टर यूजिंग टॉप मार्जिन व्हेन यू रिलोड दिस पेज, व्हाट डिड यू सी, आपके टॉप एज, वेब पेज के टॉप एज और टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस आ गया है, कुछ मार्जिन आ गई टॉप मार्जिन के हेल्प से। तो टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट यू कैन सेट द स्पेस बिटवीन टॉप एज ऑफ द वेब पेज एंड द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। अब वेब पेज का कंटेंट और टॉप वेब पेज का जो टॉप पेज है उसके बीच में आप कुछ स्पेस सेट कर सकते हो। एंड हियर कैन सी बेसिक कलर एंड हेक्साडेसिमल कोड। यहाँ पे कुछ कलर्स नेम आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनके हेक्साडेसिमल कोड, जिसके हेल्प से आप अपने विद द हेल्प ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। आप अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कलर नेम और बाय यूजिंग कलर कोड। आप कलर कोड यूज करके भी बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं।